बचपन से ही त्योहारों का बेहद शौक रहा और बहुत सजगता से उनसे जुड़े रीति रिवाजों को देखती थी। माँ पंजाबी और पिता कायस्थ, दोनों तरफ कुछ अलग और सुंदर देखने को मिलता। जनवरी आते ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। संक्रांति, सकट, लोहड़ी, 26 जनवरी, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा। रंगों की बहार, खुशनुमा मौसम और फिर होली। इस मौसम की बात अलग होती है और इसी सिलसिले में जुड़ जाता है सूफ़ी बसंत। 2006 में जब दिल्ली आई तो यहाँ के प्रमुख रिवाजों में सूफ़ी बसंत के बारे में पढ़ा। इसका बसंत पंचमी से जुड़ी कहानी पढ़ बहुत आश्चर्य हुआ और अधिक जानकारी हासिल करने पहुँच गई हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। पहली बार कदम रखा था, वो भी अकेले। थोड़ी हिचक तो थी, लेकिन वो जल्द ही गाफूर हो गई जब अचानक मेरे सामने एक सुंदर नौजवान आया और उसने कहा, बहन आपको दर्शन करने हैं। बस ज़रिया मिल गया और उस दिन के रूहानी एहसास को मुझे लगा कि मैं सबके साथ बांटूं। शुरू हुआ एक और सिलसिला, सूफ़ी बसंत जड़ से जुड़े के द्वारा, यानी कि बैक टू रूट्स। 2017, 18, 19 साल दर साल हम एक बड़े झुंड के साथ पहुंच जाते हैं हज़रत साहब की दरगाह पर। वहां पहुंचने से पहले कभी चिल्ला शरीफ और कभी लोधी गार्डन पर मिलकर बातचीत करते हैं। अपनी जन्म और कर्म भूमि पर आए प्यार और सजीले रंगों का एहसास दिलाने वाले फ़कीरों को याद करते हैं। सरस्वती माँ की आराधना और अपने जीवन के रंगों को और भी सजीव बनाने का प्रण लेते हैं। पता नहीं क्या है इस रस्म में कि हम साल दर साल सर पे फूलों की डलियाँ रख चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं दरगाह पर। दरगाह जो सूफ़ीवाद का जीता जागता नमूना है, जहां सिर्फ प्यार के लिए सजदा किया जाता है। क्या रिश्ता था हज़रत साहब और खुसरो का, रिश्ता प्रेम का, रिश्ता सादगी और कर्म का। इसी रिश्ते को निभाते हुए हमें लगता है कि हम सभी को प्रेम और सद्भावना की राह पर चलते जाना चाहिए। Let us understand the story behind Sufi Basant, or as we call it, magical Madhumas, is yet another beautiful way of welcoming the spring. All Chishti dargahs in India, including Ajmer, celebrate Sufi Basant. The 12th century saint Hazrat Nizamuddin Aulia was so aggrieved by the death of his nephew Taqiyuddin Nuh that he withdrew himself from the world and spent all his time at Nuh's grave. His disciple Amir Khusro tried hard to cheer him but failed. One day, while Khusro was walking in the fields, he saw some young women dressed in yellow clothes celebrating Basant. Khusro also donned a yellow ghagra and covered himself with a dupatta and sang the qawwali, Sakala Basant Ayori. Seeing him thus, Hazrat Nizamuddin lightened up. Since then, Sufi Basant became a regular festival of joy. On this day, devotees dress in yellow and offer marigold and mustard flowers to the Khwaja. Singers enter the complex holding yellow chadar above their heads and begin the program. This is the only dargah where Basant Panchami is celebrated with so much passion and dedication. Special Qawwali programs are organized on this day and spring songs are dedicated to Hazrat Nizamuddin. Qawwali program usually happens in the courtyard of the dargah, but an exception is made for Sufi Basant, and qawwals perform around the tombs of Amir Khusro and Hazrat Nizamuddin. Soaking in the enchanting and mesmerizing energy of the colors and fragrance of the nature's bounty, we took a look at the significance of this beautiful day. Seeking blessings from the Vignaharta, we chanted the Om, singing praises of Ma Saraswati, and shared excerpts from mythology and history about the significance of this day and the role played by various gods in making this day even more special. Also understanding the reason behind the birth and origin of Sufi movement, Bhakti movement, and the role played by the sages and saints who came to Bharat in search of salvation, in creating a balance by offering peace, harmony, love, and uniting mankind with only one thread, that of universal love and brotherhood. The best compliment came from none other than Mark Twain after his visit to India. He said, "So far as I am able to judge, nothing has been left undone, either by man or nature.
to make India the most extraordinary country that the sun visits on his rounds. Nothing seems to have been forgotten, nothing overlooked. To preserve, protect, and nurture the fundamental ethos of Bharat, the legacy of wisdom and unbridled exploration of life is a true gift to the humanity as a whole. As a generation, this is an important responsibility that we should fulfill. Let not the limitless possibilities that the sages of this land explored and expounded be lost in religious bigotry and senseless simplistic dogmas. हिंदू पंचांग में 6 ऋतुएं होती हैं। इनमें बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना गया है। इसके अलावा प्राकृतिक दृष्टि से बसंत पंचमी को फूलों के खिलने और नई फसल के आगमन का त्यौहार भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरद ऋतु की कड़ाके की ठंड के बाद प्रकृति की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल पीले फूलों के साथ, आम के पेड़ पे आए फूल, चारों तरफ हरियाली और गुलाबी ठंड मौसम को और खुशनुमा बना देती है। यदि सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो ये मौसम बहुत अच्छा होता है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों में नई चेतना का संचार होता है। इसके अलावा आइए जानते हैं कि क्या मान्यताएं हैं बसंत पंचमी को लेकर। मान्यता ये है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की, लेकिन इसके बाद सृष्टि की ओर देखने पर उनको चारों ओर सुनसान माहौल और शांत वातावरण दिखाई दिया। उन्हें महसूस हुआ कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ये देखकर वो मायूस होते हैं और तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़कते हैं। उस जल के द्वारा पृथ्वी हिलने लगती है और एक अद्भुत शक्ति की प्रतीक स्वरूप चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट होती है। उस देवी के हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है और वहीं अन्य हाथों में पुस्तक और माला। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का निवेदन करते हैं। इस तरह देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को आवाज़ मिल जाती है। मान्यता अनुसार उन देवी को सरस्वती नाम दिया गया। वो दिन बसंत पंचमी का दिन था और तभी से देवी सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। हिंदू मान्यता अनुसार इसी दिन देवी सरस्वती का अवतरण भी हुआ। यही कारण है कि ये त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत खास है। इस त्यौहार पर जगह जगह लोग पवित्र नदियों में स्नान आदि करते हैं। इसके साथ ही हाथी बसंत मेला आदि का आयोजन होता है। बसंत पंचमी के दिन को बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए शुभ मानते हैं। इस दिन कुछ जगहों पर बच्चे की जीभ पर शहद से ओम बनाने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इससे बच्चे की बुद्धि तेज होती है और जल्द शिक्षा ग्रहण करने लगता है। 6 माह के बच्चे को अन्न का पहला निवाला खिलाने यानी अन्नप्राशन के लिए ये दिन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी को परिणय सूत्र यानी शादी के बंधन में बंधने के लिए भी बहुत खास मानते हैं। इसके अलावा गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी इस दिन को अत्यंत शुभ मानते हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ माह के 5वें दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा करने का भी विधान है। इसलिए इसे बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन कामदेव और इनकी पत्नी रति धरती पर आते हैं और प्रकृति में प्रेम रस का संचार करते हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रति की पूजा का भी विधान है। Sufism is more demanding of a person than the mere fulfillment of religious duties. An unbroken silsila or chain of initiations binds the master and the disciple in both life and afterlife. The Chishti order of Sufism, which peaked during Hazrat Nizamuddin Aulia, was elevated to a socio-economic movement higher than just mere rituals. The word Sufi is perhaps derived from Arabic suf, wool, safa, to clean, or even Sophia, the Greek word for wisdom.
In the Nizamuddin Dargah, the tradition of not allowing women is being followed for 700 years. How can a Sufi saint who is expected to be kind to everyone be prejudiced towards a woman who loves him as much as a man? I don't think it was a prejudice, says Sadia Dehlvi, the woman author of Sufism, The Heart of Islam. It was their understanding of the Islamic tradition, Ms. Dehlvi says, that some Sufis during their lifetime were accessible to women and some weren't. It depends on the nature and attitude of a Sufi saint. Ultimately, it doesn't matter if you are standing inside the shrine or outside or anywhere else in the world, says Ms. Dehlvi. It's about making connection with the heart.